So very good morning. Today we are going to start the chapter, the French Revolution. Before I proceed with this French Revolution, I would like to go to class 8, right? When you were there in class 8, you had one chapter, People Who Rebel. याद है आपको? आपने एक chapter पढ़ा था, People Rebel, which was about the revolt of 1857, which happened in our country, and this was a revolt against the British. Right? आप लोगों को याद होगा कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ था रिवोल्ट के ऊपर. That was the revolt of 1857, and that was against the British rule. And वहां भी हमने ये पढ़ा कि there was not only one single reason that the people they stood against the British, they fought against the British and they demanded for their independence. कोई एक रीजन नहीं था और कोई एक या 2 साल में ऐसा रीजन डेवलप नहीं हुआ था जिससे कि जो लोग थे वो इतने ज्यादा अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के. It was because of the reasons that existed there in the country since long, right? The reasons which the people were experiencing since long in the country. यहाँ आपने पढ़ा था कि how the Britishers they exploited our industries, how they spoiled the small scale industries, right? The education system was in such a way that was to produce the clerks for the administration, that was not for the welfare of the people, right? The people were exploited in many ways, be it the farming jahan par they were forced to grow the indigo, right? Be it the other small scale industries, be it the way in which the textile industries were suffering, where the best cotton was sent to Europe and from there the ready-made material, textile material was sold to Indians at a very high rate. Their dignity was hurt in many ways. Even the soldiers, they also faced a lot of discrimination by these Britishers when the European soldiers were given the promotions, but the Indian soldiers were not. British soldiers were having the salary very much higher as compared to the Indian soldiers. The sentiments, the religious sentiments of the Indian soldiers were not kept in mind, right? The soldiers were forced to go overseas, which was prohibited in their religion, and those sentiments were not taken care of. So overall, these reasons started, you could say, 100 years back. The people they tolerated, but at a one time they were unable to tolerate the policies of the Britishers, right? In the chapter the ruling the countryside and a trade to territory in class 8, you had gone through how through the different policies, how the Britishers they had extended their empire in the country, how the local rulers were humiliated by the British. So ये बहुत सारे ऐसे reasons थे जो इकट्ठे हुए, और as I said कि कोई एक दिन में या 10 दिन में, एक साल में reasons develop नहीं हुए. These reasons were developing since long. बस एक reason ये था कि लोगों के पास एक leader नहीं था, आप कह सकते हैं, या one spark was needed. Right? The reasons were ready, the people were ready to go, a spark was needed, and then the leaders also joined and this 1857 revolt took place. और ये इतना बड़ा revolt था कि उसके बाद Britishers were also, you can say, afraid
They were scared that no other such type of movement should be there. See, काफी reasons रहे कि ये जो हमारा revolt था वो successful नहीं हुआ, but yes, उसके बाद हमारी जो national movement थी वो बहुत ज्यादा strengthen हो गई, and ultimately we got the independence in 1947. So ऐसे struggles against the government, it is not at all unique to India only, right? These things have already happened in the past. हम भी उनसे influence हुए थे, हम भी past events से influence हुए, and we realize that if the other countries can do, we can also do it, right? तो ये जो चीजें हैं, ये जो रिवोल्ट है या लोगों का गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होना, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए कोई यूनिक भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में ऑलरेडी ये चीजें होती रही, और जहां भी ऐसी अपराइजिंग होती रही है वेयर द पीपल हैड डेड टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं, जो मेजर रीजंस रहे हैं दैट आर कॉमन टू ऑल दीज अपराइजिंग्स, राइट? All the uprisings are having the common reasons. Political, right? Economic, social, intellectual, और एक हमेशा होता है immediate cause. आप कोई भी रिवोल्ट देख लो, कोई भी रेवोल्यूशन देख लो, अब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे when we will move with this French Revolution, you will come to know सारी रेवोल्यूशंस जो है they revolve around these causes. अगर हम दोबारा जाएं 1857 के रिवोल्ट पे, आपकी क्लास 8 में, वहां भी पॉलिटिकल रीजंस थे, द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द रूलर्स, right? Economic causes क्या थे? Exploitation of industries, of agriculture, right? Social reasons क्या थे? Social reasons where the people were divided on the name of religion. Religious sentiments were not taken care of. Then was the intellectual causes जहाँ पर लोगों को influence किया जाता है through the text, through the plays, through the songs, through discussions, right? So because of all these things, the people at least they say they get influenced, right? उसके बाद हमेशा एक immediate cause आता है कि ये सारे causes जो होते हैं ये long term होते हैं, चल रहे होते हैं, पहले से develop हो चुके होते हैं. एक cause आता है immediate की एकदम से उस समय क्या हुआ कि लोग एकदम भड़क गए and revolution started. 1857 के केस में क्या हुआ था? That the soldiers, when they came to know that the cartridges which they were using, I mean, it was a rumor that the cartridges they were using were coated, right, with the spats of pig and cow. So Hindu and Muslims both, they got infuriated, and that became the immediate cause which led to such a revolt. So this chapter, it starts with a very small event. इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक छोटा सा एक इवेंट बताया गया है. इट इज ऑफ 1789 where the city of Paris was in an alarming situation where it was a rumor that the king has ordered his troops to open the fire upon the citizens. ये एक रूमर उस समय फैल गया कि फ्रांस में जो किंग है उस समय, उसने एक ऑर्डर दे दिया है अपने ट्रूप्स को कि दे विल ओपन फायर ऑन द पीपल, राइट? अब इस रूमर से क्या हुआ? Many of the men, say the data says 7,000 men and women, they gathered and they decided to form a people's militia.
पीपल्स मिलिशिया मीन्स कि ये ट्रेंड सोल्जर्स नहीं होते हैं, ये प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं सिटीजन्स के काम है। हिंदी में वैसे वर्ड यूज करते हैं नागरिक सेना, right? So they decided to have a people's militia and they broke many of the government buildings. ऐसा क्या हो गया भाई, जो लोग जो थे वो इतने गुस्से में आ गए कि they had broke the government buildings, और वहां पर एक बहुत बड़ा prison था, that was Bastille. प्रिजन जो था, प्रिजन का नाम था बेस्टाइल बिल्डिंग के, और लोग जो थे they used to hate that prison a lot. Why? Because that prison was a symbol of the despotic rule of the king at that time. लोग इतने भड़क गए थे कि उन्होंने उस बेस्टाइल जो प्रिजन था उसको ही तोड़ दिया. They were so excited कि जब इन्होंने बेस्टाइल का जो प्रिजन था तोड़ दिया, वहां से प्रिजनर्स जो थे वो बाहर निकाल दिए. ऑल्दो द प्रिजनर्स वर वेरी लेस नंबर से 7, लेकिन जो इसके रिमेन्स थे बेस्टाइल के, वो मार्केट में बेचने शुरू कर दिए, बेच दिए थे कि सी दैट द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग हैज कम टू एन एंड. ये जो बेस्टाइल था उसमें वो लोग डाले जाते थे दोज हु वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द किंग. तो एक सिंबल था कि ये यहाँ पर वो इस प्रिजन में वो लोग हैं जो किंग के अगेंस्ट है. जब वो तोड़ दिया गया तो लोगों को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा कि ये टूट गया, इट मींस दैट द किंग्स रूल हैज आल्सो कम टू एन एंड, राइट? सो इसके जो फ्रेगमेंट्स थे दैट वर सोल्ड इन द मार्केट, और उन लोगों ने इनको खरीदा, अपने पास रखा, दोज हु वांटेड टू कीप द रिमेन्स ऑफ दिस रूल. ऐसा क्या हुआ, क्यों इतने लोग भड़क गए? उन्होंने बिल्डिंग्स तोड़ दी, उन्होंने जो प्रिजन था वो भी तोड़ दिया, एंड दे वर एकदम राइट्स वाले हाल हो गए थे फ्रांस में. और उसके बाद अल्टीमेटली ये हुआ कि इट लेड टू द सीरीज ऑफ इवेंट्स. एक इवेंट हुआ, उसके बाद ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते चले गए, एंड अल्टीमेटली the kingship came to an end, right? So as mentioned कि ऐसे क्या reasons हो गए थे, क्यों ऐसा हुआ, that we will talk about now only. How and why did this happen, right? तो उसके लिए आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी, right? अदरवाइज भी जब आप लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो I mean it's very easy, very simple to move with this chapter, राइट? सारे रीजंस जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं कि ये सारे रीजंस होते हैं, you will find all these reasons in this chapter, right? So ये फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, और फ्रांस की हम बात कर रहे हैं अराउंड 1789. रेवोल्यूशन हुआ 1789 में था, तो उसके आसपास कैसा टाइम था वहां पर, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द कंट्री, राइट? सो हमें जानना जरूरी है उस समय के हालात कैसे थे, राइट? हालात ऐसे थे कि दैट इन 1774 में एक किंग यहाँ पर बना. he was लुई, राइट? इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लुई, लुई 16. इस नाम के और भी काफी सारे किंग पास्ट में होंगे, इसलिए उनको नंबरिंग कर दी जाती है, राइट? कॉमन नेम होने के कारण आपको याद होगा, आपने क्लास 6 में पढ़ा है चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, राइट? सो क्या होता है, सेम नाम के किंग्स होते हैं तो कंफ्यूजन से बचने की नंबरिंग आगे, राइट? जो सबसे पहले आया होगा उसका 1, 2 एंड सो ऑन. So it was Louis XVI who became the Emperor of France in 1774. And he was 20 years old. He had married Mary Antoinette, who was the Austrian princess. Right? Now, when he ascended the throne, जब ये king बना, तो उसको कुछ
मुश्किलें आई, क्या मुश्किलें आई? सबसे पहले तो मुश्किल थी एम्प्टी ट्रेजर, खजाना एक खाली पड़ा था। जो शाही खजाना था, जो किंग्स के पास था, कि विच वाज यूज्ड फॉर एज फॉर द एक्सपेंसेस टू बी देयर इनकर्ड ऑन द एम्पायर, तो वो पूरा का पूरा खाली हो चुका था। उसके खाली होने के पीछे भी कुछ रीजन थे कि पास्ट में जो फ्रांस था, इट हैड बीन इन्वॉल्व इन लॉन्ग वॉर्स, बहुत लंबी पुरानी लड़ाइयां चलती रही, और जब भी लड़ाइयां होती है that are very very expensive. सोल्जर्स की सैलरीज है, मेंटेनेंस है, आर्म्स है, एमिनेशंस है, बहुत एक्सपेंसिव ये वॉर्स पड़ती हैं। ऑलरेडी काफी सारी वॉर्स जो थी वो फ्रांस लड़ चुका था। इसके अलावा फ्रांस ने कुछ अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करने में भी हेल्प की, राइट? इट हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, 13, ये थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज, और ये कौन सी थी? दिस वाज अंडर द ब्रिटिश। जैसे इंडिया जो था, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ऐसे ही 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी, दे वर आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो फ्रांस ने इन 13 कॉलोनीज को हेल्प किया था इंडिपेंडेंस में, उसमें बहुत सारा खर्चा हो गया। प्लस जहां पर लुई 16 रहता था, दैट वाज पैलेस ऑफ वर्साइल्स, राइट? सो पैलेस ऑफ वर्साइल्स वाज so big, so huge that it costed a lot in its maintenance, right? Extravagant code, saying extravagant code, इतना बड़ा कोड था ये, यहाँ पर एम्प्लॉइज भी हैं, कोड की मेंटेनेंस भी है, तो ये इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता था, बहुत ज्यादा खर्चा होता था, राइट? और अब जब वॉर्स यहाँ पर ऑलरेडी लड़ रहे हैं सारी, तो क्या हुआ कि ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर काफी उधार था। ये जो वॉर्स लड़ रहा था ना फ्रांस, वो क्रेडिट पे ही लड़ रहा था। तो अब इस वॉर्स के कारण, अमेरिकन कॉलोनीज वाली वॉर्स के कारण और धार चढ़ गया। एंड व्हाट वाज द टोटल अमाउंट? दैट वाज से 2 बिलियन लेवल्स, राइट? अब जिन्होंने इनको लोन दिया था, दे हैड स्टार्टेड चार्जिंग मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो चार्ज करना शुरू कर दिया, राइट? सो अब इनके पास और कोई चारा नहीं था कि अब उन्होंने जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना है, क्योंकि जितने इनके पास इनकम आ रही थी फ्रांस के पास, फ्रेंच लुई 16 के पास, द मच पार्ट ऑफ दैट इनकम वाज गिवन एज द इंटरेस्ट ओनली। जो लोन लिया था उसके इंटरेस्ट में काफी सारा पैसा जो था वो जा रहा था, राइट? इसके अलावा और भी खर्चे थे, एज मेंशन, आर्मी है, कोर्ट है, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्ट्स हैं। आई मीन इतने सारे खर्चे कहाँ से पूरे हो रहे हैं? सो he decided to increase the taxes, right? अब जो टैक्स सिस्टम था वो भी इसका बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म नहीं था। टैक्स सिस्टम वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन that led to this revolution. वैसे तो ये सारे reasons भी काफी सारे थे कि the king himself was not at all a stable one. He could not control the expenses of the country, right? So अब जो उसने taxes लगाए लोगों के ऊपर, वो कैसे लगाए? What was the taxation system? Right? That we will do in tomorrow's class.